Hello students, I think all of you must have done the topic which was covered in the previous lecture. Today we are going to discuss the new topic, that is the Raoult's law. Raoult's law is basically concerned with the non-volatile solute dissolved in a volatile solvent. First of all, we must know what does a volatile and a non-volatile solute or solvent means. So volatile component, if we are talking, is something that has a tendency to go in the vapor state. But a non-volatile component has no tendency to go into the vapor phase. So here we can say that the presence of a non-volatile solute in the solution reduces the escaping tendency of the solvent molecules into the vapor phase and hence lowers the vapor pressure of the solvent. How? देखो क्या होता है, अगर हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया तो कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर थे जिनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी थी, बिकॉज सॉल्वेंट को हम कह रहे हैं सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल इन नेचर. सो जब हमने उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, लेट अस सपोज जब तक हमने उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया है, उसके सरफेस पर 100 मॉलिक्यूल्स थे. ऑल द 100 हैज अ टेंडेंसी टू गो टू द वेपर फेज, बट if we have dissolved some non-volatile solute into the solvent, that means a solution is formed. In that case, let us suppose कि जो surface पर पहले 100 solvent molecules थे, अब उन 100 solvent में suppose 5 positions non-volatile solute ले लेता है. अब solute क्योंकि non-volatile है, that means having no tendency to go into the vapor phase. Therefore, only solvent can go into the vapor phase. And initially, there were 100 molecules जब तक हमने solute को dissolve नहीं किया था. But now, because 5 positions have been occupied by the non-volatile solute, therefore now only 95 molecules are there which have a tendency to go into the vapor phase. So, in the previous case, when there was no volatile solute dissolves, the vapor pressure was due to 100 molecules, but in the second case, when the non-volatile solute is dissolved, that means the solution is formed. In that case, the vapor pressure will be only due to the 95 molecules. So earlier, the vapor pressure will be more, but when the non-volatile solute is dissolved, then vapor pressure will decrease. Is that thing clear to you? सो यहाँ पर देखो, जो ये एग्जैक्ट एक मेजरमेंट थी कि कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ, यहाँ से डिक्रीज कितना हुआ वेपर प्रेशर में बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट व्हिच वाज नोन एज राउल्ट, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन 1887, and the Raoult's law was named after that scientist. So the Raoult's law states that in a solution, the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component in solution multiplied by the vapor pressure of that component in pure state. अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई component I है, and when it is present in solution form, its vapor pressure is Pi. But if it is present in the pure form, that means जब तक हमने solute dissolve नहीं किया था, वो pure form में था, तो हमने उसके vapor pressure को नाम दे दिया Pi नोट, और we can say Pi0. तो अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर जो होगा, दैट विल बी equal to its vapor pressure in its pure state multiplied by its mole fraction in the solution, where xi represents the mole fraction of the solvent in solution.
तो अब यहाँ पर अगर हम किसी बाइनरी सॉल्यूशन को ले रहे हैं तो देखो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो हमने क्या किया, इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वो टोटल वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा. दैट मीन्स जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का दैट विल बी ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स की तो टेंडेंसी है ही नहीं वेपर्स बनाने की. तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा. So here we can say the vapor pressure of solution will be equal to the vapor pressure of solvent in the solution. Is that thing clear to you? कि हमारा जो solution का vapor pressure है वो उस solution के अंदर जो solvent का vapor pressure है उसके equal हो जाएगा. अब अगर हम first और second results को combine कर दें तो हम कह सकते हैं कि जो solution का vapor pressure होगा वो हमारे पास उस कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखें तो 1 जनरली हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं एंड 2 जनरली वी यूज़ फॉर सॉल्यूट. देयरफॉर वी मे राइट PS दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाइड बाय P0 वेयर P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो अब यहाँ से अगर हम प्रेशर वाले दोनों टर्म्स को एक साइड कर लें तो हमारे पास आ गया द रेशियो ऑफ PS टू P0 दैट इज इक्वल टू x1. इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स N2 moles of the solute dissolved in N1 moles of the solvent then we have कि अगर हमारे पास टोटल जो सॉल्वेंट था उसके N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं और उनके अंदर N2 नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्यूट डिजोल्व कर रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो हो गए दैट इज N1 प्लस N2. और यहाँ से अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. दैट मीन्स x1 विल बी इक्वल टू N1 ओवर N1 प्लस N2. अब हम क्या करते हैं, इस x1 की ये वैल्यू ऊपर वाली फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो हमारे पास अब यहाँ से क्या आ गया, द रेशियो ऑफ PS ओवर P0 दैट इज इक्वल टू N1 ओवर N1 प्लस N2. अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड्स को दैट मीन्स इस इक्वेशन की दोनों साइड्स दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों को ही 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में P0 LCM आ गया और इधर जो ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली टर्म बन गई दैट इज P0 माइनस PS और जो यहाँ आया हमारे पास दैट विल बी N2 ओवर N1 प्लस N2. यू कैन ट्राई एंड सॉल्व इट. तो अब यहाँ से हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड में टर्म आ गई दैट इज P0 माइनस PS ओवर P0. दिस टर्म इज नोन एज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और अगर हम यहाँ से डिनोमिनेटर वाली टर्म ना ले करके सिर्फ न्यूमरेटर वाली टर्म लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की दैट इज P0 माइनस PS, तो ये हमारे पास क्या है कि P0 हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PS हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. है तो ये भी सॉल्वेंट की वजह से ही, लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या कर रखा है, जो प्योर सॉल्वेंट की कुछ पोजीशंस थी उनको सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने कवर कर रखा है. दैट मीन्स उन पोजीशंस पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे वो अब वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे. तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो अब यहाँ से ये जो टर्म बन गई P0 माइनस PS ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और अगर हमने इसका रेशियो ले दिया P0 के साथ देन दैट टर्म बिकम्स द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और जो हमारे पास राइट हैंड साइड में टर्म है दैट इज N2 ओवर N1 प्लस N2 दैट रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन.
तो अब यहाँ से इस ऊपर वाली फिफ्थ इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे द रिलेटिव lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in the solution, and that is the basic definition corresponding to the relative lowering of vapor pressure. कि हमारे पास जो रिलेटिव lowering of vapor pressure है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, और इसी को हम दूसरी स्टेटमेंट बोल देते हैं राउल्ट्स लॉ की। फर्दर अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर लें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन हैविंग अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट। तो अगर सॉल्यूशन हमारा बहुत डाइल्यूट है, इन दैट केस जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे दैट विल बी वेरी मच स्मॉल in comparison to N1. So N2, that is number of moles of solute, can be neglected in comparison to N1. तो अब ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन वाला एक्सप्रेशन अब यहाँ पर रिड्यूस होके बन गया P नोट माइनस पी एस ओवर P नोट दैट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। और अगर हम सॉल्वेंट फिक्स कर लेते हैं दैट मीन्स फॉर अ गिवन सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, P नोट माइनस पी एस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 ओवर N1। फर्दर अगर हम एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, लेट अस से कि हम 100 ml टोटल सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, P नोट माइनस पी एस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolved in same quantity of a particular solvent, the lowering of vapor pressure is directly proportional to the number of moles of the solute dissolved. दूसरे तरीके से हम इसी बात को कैसे कह सकते हैं हम कह सकते हैं the equimolar quantities of any non-volatile solute, कि अगर हम दो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लें लेकिन उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए, डिजॉल्व्ड इन सेम क्वांटिटी ऑफ सेम सॉल्वेंट, कि दोनों को एक ही सॉल्वेंट के सेम अमाउंट में डिजॉल्व किया हमने। लेट अस से एक सॉल्वेंट हमने बेंजीन ले लिया, एक हमने टॉल्यूएन ले लिया, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लिए हमने, और दोनों को हमने क्या किया, CCl4 के अंदर डिजॉल्व कर दिया, और CCl4 का अमाउंट हमें दोनों ही केसेस में इक्वल रखना है। लेट अस से हमें 50 ml CCl4 में ही 100 मोल्स ऑफ बेंजीन डिजॉल्व किया, और 50 ml CCl4 में ही 100 मोल्स हमने टॉल्यूएन को डिजॉल्व किया है। तो इन दैट केस द सेम सॉल्वेंट विल प्रोड्यूस द सेम लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही सॉल्यूट्स के केस में जो रिलेटिव ओनली लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी द सेम। Now let us discuss one more topic, that is the expression for the total vapor pressure in terms of mole fractions of the components in vapor phase. अब देखो, अब तक जो हम मोल फ्रैक्शन डिस्कस करते आ रहे हैं that is x1 and x2. These are the mole fractions in liquid state, कि जब हम सॉल्यूशन के अंदर उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, ये वहाँ पर उनके मोल फ्रैक्शंस हैं। बट अब हमें क्या डिस्कस करना है, टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, कि अब हम जो उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन लेंगे वो अब हम उनके मोल फ्रैक्शंस लेंगे उनकी वेपर स्टेट के अंदर। तो अब देखो, इसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वही राउल्ट्स लॉ हमें चाहिए कि अगर हमारे पास कोई प्राइमरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स A और B हैं, और वहाँ पर XA और XB उन्हीं दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस हैं लिक्विड फेज के अंदर, और P नोट A P नोट B उनके वेपर प्रेशर्स हैं उनकी प्योर स्टेट के अंदर। तो उनके पार्शियल प्रेशर्स को अगर हम PA एंड PB से डिनोट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें पता है PA विल बी इक्वल टू
एक्स ए इंटू पी नोट ए, जहाँ पर पी नोट ए है उस कंपोनेंट ए का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर, एंड सिमिलरली पी बी विल बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी, where P naught B is the mole fraction of that component in its pure form. So यहाँ से जो total vapor pressure बन जाएगा that will be the sum of these two vapor pressures, that means PA plus PB, और PA हमारे पास है XA P naught A and PB is equal to XB P naught B. Therefore the total vapor pressure P becomes XA P naught A plus XB P naught B. Now let us derive an expression for the total vapor pressure P in terms of the mole fraction of components in vapor phase. तो ये तो हमारे पास total vapor pressure आ गया liquid phase के अंदर. अगर हमें total vapor pressure निकालना है in terms of the mole fraction of component in vapor phase, तो हमें उसके लिए सबसे पहले इनके mole fractions को suppose करना पड़ेगा. तो हम consider कर लेते हैं कि हमारे पास YA and YB are the two mole fractions. That means YA is the mole fraction of component A in vapor phase and YB is the mole fraction of that second component B in its vapor phase. तो according to definition of partial pressure हमारे पास क्या होगा कि YA तो किसके इक्वल होगा, partial pressure of A divided by the total pressure, and in the same way जो YB हमारे पास होगा that will be the ratio of PB and the total pressure P. Let us say this is our equation number 3rd. तो यहाँ से अब हम partial pressure of A as well as partial pressure of B के लिए expression निकाल लेंगे. That is PA की वैल्यू निकाली तो that will be equal to total pressure into mole fraction of A in vapor phase, and similarly PB will be equal to P into YB. Let us say this is our equation number 4th. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास PA की वैल्यू आ गई, PB की वैल्यू आ गई, तो इन दोनों ही वैल्यूज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, XA P नोट A इज इक्वल टू टोटल प्रेशर P इंटू YA एंड PB इंटू XB इंटू P नोट B दैट इज इक्वल टू P इंटू YB. अब सेकेंड इक्वेशन को एक बार देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू XA P नोट A प्लस XB P नोट B. तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको या तो XA की टर्म्स में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे या फिर पूरी ही इक्वेशन को XB की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. तो हमने क्या किया, XA को हमने लिख दिया 1 माइनस XB, बिकॉज दो ही कंपोनेंट्स हैं तो XA एंड XB दोनों का सम हमारे पास 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा. तो हम XA को लिख देंगे 1 माइनस XB. तो यहाँ पर हमने जस्ट इतना ही चेंज किया. देन हमने P नोट A वाली टर्म्स को कांस्टेंट टर्म्स जो P नोट A है उसको अलग निकाल लिया और XB वाली टर्म्स को इकट्ठा करके वहाँ से XB को कॉमन निकाल दिया. तो अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है XB की. तो XB जो हमारे पास आ गया दैट इज P माइनस P नोट A डिवाइडेड बाय P नोट B माइनस P नोट A. लेट अस से दिस इज आवर सिक्स्थ इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से XB की जो वैल्यू हमने निकाली है सिक्स्थ इक्वेशन में उसको हम अपनी फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो हमारे पास अब यहाँ से फिफ्थ इक्वेशन से क्या आ गया, P इंटू YB जो फिफ्थ इक्वेशन में राइट हैंड साइड थी उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया है यहाँ पर. तो P इंटू YB विल बी इक्वल टू XB इंटू P नोट B. XB की जगह रख दो वैल्यू P माइनस P नोट A डिवाइडेड बाई P नोट B माइनस P नोट A, जो हमारी सिक्स्थ इक्वेशन में हमने वैल्यू फाइंड आउट की है. अब यहाँ से इसको रीअरेंज करके हमें जस्ट सॉल्व करना है टोटल प्रेशर P के लिए. तो फाइनली टोटल प्रेशर P हमारे पास आ गया P नोट A P नोट B डिवाइडेड बाय P नोट B प्लस P नोट A माइनस P नोट B इंटू YB. बट ये जो रिजल्ट अभी हमारे पास आया है टोटल प्रेशर P के लिए वो याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं.
रेसिप्रोकल लिया तो p का रेसिप्रोकल 1/p, और इधर से जो राइट हैंड साइड थी उसमें जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो अब यहाँ से ये जो इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ गई सॉल्व करने के बाद, दैट इज 1/p इज इक्वल टू YA P नोट डिवाइडेड बाई P नोट A प्लस YB डिवाइडेड बाई P नोट B. You can easily see that now this equation is very easy to remember. तो यहाँ से हमने एक रिलेशनशिप निकाल दी टोटल प्रेशर P की मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के साथ में, यानी कि YA YB की टर्म्स में। यू कैन ईजिली सी कि यहाँ पर XA XB वाली टर्म कहीं पर भी नहीं आई है। अब देखो एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज एंड इन द वेपर फेज। यानी कि जो हमारे पास लिक्विड फेज वाले मोल फ्रैक्शंस हैं XA XB, और जो वेपर फेज वाले मोल फ्रैक्शंस हैं YA एंड YB, उनके बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है। तो उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन द वेपर फेज। हमें पता है दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हमारे पास अगर बाइनरी सोल्यूशन ही है तो दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। अब यहाँ पर इनकी राउल्ट्स लॉ वाली वैल्यूज रख देते हैं। तो PA इज इक्वल टू XA P नोट A एंड PB इज इक्वल टू XB इंटू P नोट B। देन XA को हम XB की ही टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो XA को हमने लिख दिया 1 माइनस XB, बाकी सारी चीज़ें एज सच रख के, और XB वाली टर्म्स में से डिनोमिनेटर में हमने XB को कॉमन निकाल दिया। अब देखो इन द सेम वे अगर हम मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट B का ले लें वेपर फेज में तो भी यही काम करना है हमें, और यहाँ से YB की वैल्यू हमारे पास आ गई XB P नोट B डिवाइडेड बाय P नोट B माइनस P नोट A इंटू XB प्लस P नोट A। दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशंस में, यानी कि इक्वेशन 10 और इक्वेशन 12 में जो डिनोमिनेटर है दैट इज द सेम। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें मिलेगा कब, जब हम इस 12th इक्वेशन को अपनी या फिर हम 11th को भी कर सकते हैं, 11th इक्वेशन को 9th इक्वेशन से डिवाइड कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12th इक्वेशन को 10th इक्वेशन से डिवाइड कर दो, बट मोर इजी विल बी बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 11 बाय इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप मिल गई, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, XB XA वाली टर्म्स को इकट्ठा किया और P नोट B P नोट A वाली टर्म्स को, यानी कि प्योर स्टेट में जो उनके वेपर प्रेशर्स थे उन टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। तो फाइनली हमारे पास एक रिलेशनशिप जो निकल करके आई दैट इज YB ओवर YA दैट इज इक्वल टू XB ओवर XA इंटू P नोट B बाय P नोट A। अब यहाँ से इस रिलेशनशिप से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट ज़्यादा वोलेटाइल है, दैट मीन्स विच इज़ हैविंग मोर टेंडेंसी टू गो इनटू द वेपर फेज देन दैट ऑफ द अदर। हमने मान लिया कि हमारा सॉल्वेंट B ऐसा है जो नॉन वोलेटाइल जो मोर वोलेटाइल है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज़्यादा होगा देन द अदर वन। दैट मीन्स P नोट B विल बी ग्रेटर देन P नोट A। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर मैं P नोट A को इसके साथ डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो इन दोनों का जो रेशो है दैट विल बी ग्रेटर देन A, और अगर इन दोनों का रेशो मोर देन 1 है तो फाइनली जो इनका प्रोडक्ट है XB ओवर XA के साथ, समझ रहे हो आप लोग कि XB ओवर XA के साथ जो इनका प्रोडक्ट है वो सारा का सारा लेस देन हो जाएगा YB ओवर YA से। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं कि वेपर फेज जो होगा, तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज दैट विल बी ग्रेटर देन द रेशियो ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स इन लिक्विड स्टेट। दैट मीन्स जो वेपर फेज है वो रिच होगा किस में, जो कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है उसमें। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप आई है एक सिंपल मोस्ट रिलेशनशिप है
और इसी रिलेशनशिप को एक रूल का नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कोनोवेलोव्स रूल. So many a times this relationship is asked in the form of this rule, that is Konovelov's rule, that is state and explain Konovelov's rule. तो स्टेटमेंट तो इसकी हमारे पास बन गई कि जो वेपर फेज है that will be richer in the more volatile component than the liquid phase. ठीक है. So this is all about your today's lecture. All the very best and do it very well.